Well, I know very well the result that who is going to win this event today, and how just the speech competition is monitored. I know very well that you people are having butterfly in your stomach, that what would be next up. But a little bit, pin drop silence I want and I expect from your side, because we gave you a lot of opportunity to enjoy, to entertain during the performances and as well as after the performance. So, but it's my habit, or you can say, until I feel a quite decorum atmosphere, I feel a little bit, hesitate to give the promulgation, because sometimes the people they get in the complex that on the what basis I have been judged and why just I have been out from the speech competition. I understand very well that it had been near about 15 to 20 days. You people had been preparing for the speech competition right now. If you have faced two, so you are expecting a good result from us. Then what's our duty? It's our duty to give you the proper explanation. That's a different thing. But what are the basics on which we have judged your performance? First you need to understand. But before the promulgation, I have few words regarding the performance, regarding the decorum, regarding the speech competition, the event. Since morning, what we had been having, our experience, everything I would like to elaborate in. We have found that actually today I would like to elaborate in front of you, and which you need to understand. And why this kind of speech competitions are organized in American Institute, every branches, not even in. This is a seminar, a platform where you get that what should be the level of the education and as well as what you have to do during the summer here. If you have performed as a speech competitor, as a performer in a speech competition, so obviously you might have had hodgepodge in your stomach that what would be the result, because there were 3 rounds and basis of the 2 rounds. 3 rounds आप लोगों को बताए गए थे speech competition maximum 10 बजे इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए था। 1.5 घंटे हम लेट रन कर रहे हैं और बहुत से लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना है। कभी कभी समय के अभाव की वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्ट करते हैं वो टाइम पे नहीं हो पाती। दैट इज व्हाई हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम 3 राउंड्स को नहीं एंटरटेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही राउंड्स हम यहाँ पर करेंगे। हम उसी के बिहाफ पे आपकी यहाँ पे आज जो भी ग्रामर यू कैन से स्पीकिंग, आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा है या नहीं, आपका बोलने का तरीका। सेकंड थिंग इज एक्सप्रेशन, आपका अंदाज, जिसको हम लोग आपके बोलने की शैली, आपके बोलने का लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत हम रखते हैं। थर्ड थिंग इज द प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण, द क्वाइट कंपल्सरी इन द सोल ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो प्राण कहलाती है वो उसकी तलफ्फुज, वो उसका उच्चारण कहलाता है। एंड the most important thing in the performance, that is the aptitude, means related to the topic. आप टॉपिक से here and there wander न करें, और जितनी बातें आप बोल रहे हैं वो सामने वाला कितना समझ पा रहा है। आपका टॉपिक ऐसा तो नहीं इतना ज्यादा आप टिपिकल मेथड का यूज कर रहे हो, इतने हार्ड वर्ड्स का यूज कर रहे हो जो आपने गूगल से कॉपी किया, उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। आपकी लैंग्वेज क्वाइट इजी होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। हमें ये जज करना होता है कि हमारे सामने बैठा हुआ पब्लिक या हमारे सामने बैठे हुए लोग किस लेवल के हैं। आफ्टर ऑल वी आर एंड दिस इज आवर कोर्ट, ये हमारा कोर्ट है, हम यहाँ के जज हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी आर नॉट ऑलमाइटी। हम ईश्वर नहीं हैं, हम कर सकते। समटाइम वी आल्सो डू एरर, कभी हम लोग भी गलतियां करते हैं, और जब हम लोगों से गलतियां होती हैं, ज्यादा तो नहीं होती, डे बाय डे, एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस, आफ्टर ऑल यू पीपल हैव मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जितने भी लोग बैठे हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री का आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, इफ यू आर द स्टूडेंट नॉट द सीनियर वन। हमारे पास 1 डिकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आपकी तरह हजारों लाखों बच्चों को, अलग अलग शहरों के बच्चों को हमने जज किया है। The first performance, first round, it was the self-topic round in which you people had to prepare the topic and you had to explain on the stage. आप लोगों ने अपने टॉपिक को पहला प्रिपेयर किया फर्स्ट राउंड, और उसके बाद में आपको स्टेज पे एक्सप्लेन करना था। आप स्टेज पे आए, you people were roaring, really. I was, it was a hair-raising experience that the way just you people are speaking and what the words that is coming out of your tongue. Sometimes I was getting confused that you are speaking the same thing or I am getting confused. Because it was an unexpected type of performance in first round. You people spoke very well. That was it was totally cramped.
अगर हम फर्स्ट राउंड की सेकंड राउंड से कंपैरिजन करें तो जितने भी लोगों ने फर्स्ट राउंड बोला है उसमें कुछ लोगों को छोड़ के ये माना जाएगा कि आप में से फर्स्ट राउंड के ऊपर आपने ज्यादा केयर किया ना कि सेकंड राउंड के ऊपर। लेकिन होता क्या है आपको पता है, पहला टॉपिक राउंड जो भी आप लोगों ने यहाँ पे चूज किया था फर्स्ट टॉपिक राउंड के लिए वो टॉपिक थे जिसको आप 10-15 दिन से तैयार तो कर रहे थे, लेकिन जिस चीज को आप पिछले 2 महीने से, आई एम नॉट सेइंग 3 मंथ्स, मैं 3 महीने नहीं कहूंगा क्योंकि शुरुआत के 1 महीने की क्लास अमेरिकन 20-30 दिन की क्लासेस को छोड़ करके जो 2 महीने की क्लासेस हैं 60 डेज, आई एम काउंटिंग दो 60 डेज, उन 60 दिनों जनरली होता भी यही है कि हम जब कभी भी किसी चीज के बारे में पूर्वानुमान हमें वो मास्टर है, दैट इज द नेचुरल रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ हिज फर्स्ट टॉपिक राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड में चीजें आपकी कहीं ना कहीं, इवन यू पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग द सेम टॉपिक, आप लोगों ने उस टॉपिक को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो आपके सामने आया। व्हाट हैपेंड, यू पीपल फेल्ट लॉस, आप लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस किया, अरे यार ये टॉपिक क्या आ गया, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। जीवन में भी यही होता है, जब कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बात बताते हैं, when the conditions are not favorable the performance of the common man it decreases। जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं तो जो परफॉर्मेंस होती है कॉमन मैन की वो बहुत डिक्रीज होने लगती है, टेम्पर बढ़ने लगता है, एग्रेशन आने लगता है, मिसमैनेजमेंट चीजें होने लगती हैं, मिसमैनेजमेंट में जाने लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम शॉर्टेज की तरफ भागने लगते हैं, हम जल्दी जल्दी चीजों को वाइंड अप कर देते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। बट एक सबसे बड़ी चीज है, when the condition is unfavorable the performance of the common man decreases, but when the going gets tough gets going। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उस समय जो हिम्मती पुरुष होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर देते हैं, ना कर पाए। और आज ये चीज इस इवेंट में मुझे देखने को मिला। If I had been on the places of him, मैं तो बहुत गुस्सा हो गया होता, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अगर थोड़ी सी भी चीजें मिसमैनेज हुई तो मेरे से दिक्कत नहीं होती, प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ उसके बावजूद उसके बाद में भी सारी चीजें सिस्टमेटिकली, और मैं देख रहा हूं आप जितने लोग बैठे थे 80% स्टिल पीपल दे आर सिटिंग हियर। तो ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, ये एक टफ पर्सन की पहचान है जिसको हम रियल हीरो कहते हैं, एंड द रियल हीरो इज नन अदर देन मिस्टर विक्रम सर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। There are lots of things which I need to explain। मैं अभी बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बातें अच्छी लग रही हैं? इंजीनियरिंग ये एक तरह की इंजीनियरिंग है ना। अगर घर का इंजीनियर उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है, छोटी सी जगह में अच्छा घर को बना देना। इंटीरियर डिजाइनर एक इंजीनियर होते हैं, देखो कितना अच्छा हॉल लग रहा है, बनाया गया। एक इंजीनियर ने इस चीज को बनाया, मैं यहां से बोल रहा हूं आवाज उधर से आ रही है, ये सब कुछ इंजीनियरिंग है। ऐसे ही आज की इंजीनियरिंग इस इवेंट में देखने को मिली कि सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। भले आप लोग एंटरटेन कर रहे थे खुद को, लेकिन उस समय भी कुछ लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर था। चलाने की जो इंजीनियरिंग थी वो यहाँ के एंकर्स के ऊपर थी, तो दे आर द रियल इंजीनियर्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द एंकर्स, दे हैव मैनेज्ड दिस प्रोग्राम वेरी वेल, रियली। ऐसे नहीं, जोरदार तालियां, मतलब इतना कि इनको लगे कमाल। और एक बार फिर से इन 3 लोगों के लिए जोरदार तालियां। सबों को इस तरीके से सर्विस देना है कि वो जब यहाँ से जाएं तो दोबारा इस चीज को कहें कि रियली उन्नाव डिड अ ग्रेट जॉब, मैंने उन्नाव से चीजें सीखा है। तो इस तरह की हॉस्पिटैलिटी दी गई तो ये चीज बहुत बड़ी होती है। सबसे बड़ी चीज इस भारत की एक देश है, भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, और हम उस चीज को इनक्रेडिबल इंडिया आज मैंने आपके अंदर देखा है सर। रियली एक बार सर के लिए सेकंड राउंड में आपके जो भी मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, देन कुछ लोगों ने 1 मिनट तक का टाइमर नहीं कंप्लीट किया, दे पीपल वर डिस्क्वालीफाइड, वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप लोग उस चीज को लेकर के अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी वीडियोस हैं, मार्कशीट्स हैं, आप उसको एक बार ग्लांस कर सकते हैं। आप विक्रम सर से कंसल्ट कर लीजिएगा। बट रियली एक चीज मैं बता रहा है समथिंग, एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। फिजिक्स पढ़े आप लोग? कितने लोग यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं? फिजिक्स के है ना? विद्युत बल्ब का आविष्कार किस सन में हुआ था? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं पता ना? 1889 की 1879। आप लोगों को फिर से होमवर्क करने की जरूरत है। 79 and 80, 1879 and 1880
थॉमस अल्वा एडिशन ने टंगस्टन की खोज की थी जब उन्होंने विद्युत बल्ब में इस चीज को यूज किया था। पढ़िएगा 999 टाइम्स फेल होने के बाद उन्होंने इस चीज को किया था और तब उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और उसी समय उनके एक समकक्ष वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टेस्ला, निकोल टेस्ला। आप लोगों ने नाम सुना है? हम आज मोबाइल चार्ज करते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर रहे हैं, इन्वर्टर से बैटरी का यूज करते हैं, सोलर प्लेट यूज कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इवन कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपका डीसी करंट है, उस करंट की खोज और उस करंट को सप्लाई करने का जो काम किया था वो निकोल टेस्ला ने किया था। इतिहास में उनका नाम बहुत ज्यादा तो नहीं है। थॉमस अल्वा एडिशन एसी करंट के सपोर्ट में थे। He was a quite billionaire. His father was a famous personality of his place. और निकोल टेस्ला was a single personality. उस समय की सिंगल पर्सनालिटी जिसने अपने दम पे, अपने काम पे, अपने डीसी करंट के आविष्कार को फैलाया और उसने इस चीज का विरोध किया कि आप एसी करंट के तार को ना बिछाएं क्योंकि इससे लोगों को करंट लगने के चांसेस, जानवरों को करंट लगने के चांसेस होते हैं। और हुआ भी यही, एक साल में 10,000 लोगों की मौत हुई थी जब एसी करंट को फैलाया गया था। लेकिन विद्युत बल्ब की जो खोज हुई थी वो हम लोगों की, थैंक यू सो मच, मैं बता रहा था एक बिजली का बल्ब मुझे मिला। सर ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मुझे एक बिजली का बल्ब मिला जब ईस्टर्न यूपी में अमेरिकन इंस्टीट्यूट में यूट्यूब खोलो, उस पे एलई का बिजली का बल्ब, नॉलेज, लर्निंग, रोल प्ले और इवेंट कैसे होता है। तो ये बिजली का बल्ब मुझे मिला है, ऐसे नहीं और तेज ताली बजाओ, और तेज ताली बजाओ। और पता है इस बिजली के बल्ब की खोज एक एडिशन और एक निकोल टेस्ला ने किया था। अगर निकोल टेस्ला ने विरोध न किया होता तो एडिशन खोज नहीं कर पाते, और अगर एडिशन ने अपना सैक्रिफाइस नहीं किया होता, 2 बार डेथ कॉज हुई, 2 बार वो मृत्यु के स्थान तक पहुंच चुके थे। और ऐसी कंडीशन एडिशन की उस समय थी, उनके सर्वेंट ने खाना ऑर्डर किया, खाना लेकर के आया, कहा सर योर डिनर इज रेडी प्लीज हैव। तो उसने कहा ठीक है चलो 5 मिनट में आता हूं। आधे घंटे बाद हो गया, 5 मिनट 10 मिनट करते करते 2.5 घंटे बाद वो डिनर लेने पहुंचे। उस समय उनका सर्वेंट खाना खा के सो चुका था और वो घड़ी देख रहे हैं, अरे मैंने तो डिनर कर लिया, याद भी नहीं कि मैंने डिनर कर लिया है, और उठ करके चले गए सिर्फ एक गिलास पानी पीकर। कि उनको ये तक याद नहीं था, डेडिकेशन इतना भयंकर था। अमेरिकन इंस्टीट्यूट के आज हमारे बीच बैठे एक हिडन पर्सनालिटी, हिडन जेम, आप विद्युत बल्ब यूज करते हो उनका नाम तो नहीं लेते हो। ऐसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट में विक्रम सर को देखते हो लेकिन ना चंदन सर का नाम कभी लेते हो ना निशान सर का। दे आर द एडिशन एंड निकोल टेस्ला ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट। मैं चाहूंगा स्टैंडिंग ओवेशन एक बार इनका दीजिए, खड़े होकर के जोरदार तालियों से सब लोग जोरदार, पूरा जोरदार। नहीं सकते। अगर अमेरिकन इंस्टीट्यूट को जानना है तो सर की आईडी फेसबुक की, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू कर दो। आपको सिर्फ नाव की नहीं, इंडिया लेवल की इंग्लिश और इंडिया लेवल के चैलेंजेस और कंपटीशन की जानकारी से जुड़ जाइए। आपकी लाइफ आने वाले 1 साल के अंदर कैसे बदल जाएगी, भले वो आपके सामने नहीं है, वो द्रोणाचार्य आप लोगों को बोल रहा हूँ। दूसरी बात मैं आप बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले कि आज का जो भी परफॉर्मेंस था उसमें से हमारे टॉप 5 विनर्स यहाँ पे, तो प्लीज आप लोग बात ना करें, बस 1 मिनट। सर मैं डाउन साइड से सबसे पहले बुलाना चाहूंगा who has gotten 5th position in this speech competition. For presenting this award I have the name Mr. Sir Nigam ji. Please come on the stage for presenting this award. Please give a huge clap for sir. One more position. I would like to take the name of the person who is going to present the 3rd award. Hello, Mr. Vaishnav Bajpai. Mr. Vaishnav Bajpai. Mr. Vaishnav Prakash Bajpai. Please put your hands together. Jaldi. Now. ये आपकी लाइफ का डिक्लेरेशन नहीं है, ये आपके सिर्फ स्पीच कंपटीशन का डिक्लेरेशन है जो आज आप लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। वेल, फॉर प्रेजेंटिंग द 2nd अवार्ड आई वुड लाइक टू टेक द
Mr. Ale or Miss Ale of the speech competition of the American Institute until upcoming speech competition. अगले स्पीच कंपटीशन से आज जीतने वाला जो भी पर्सनालिटी होगी, जो भी व्यक्ति होगा, वो कहलाएगा मिस्टर एल या मिस एल. एंड फॉर प्रेजेंटिंग दिस अवार्ड आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ द पर्सनालिटी. दे आर द निकोल टेस्ला एंड एडिसन. सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, यू बोथ, फॉर प्रेजेंटिंग द अवार्ड. सिर्फ एक लास्ट लाइन. आवाज पसंद है तो आदमी डरेगा ज्यादा, आपकी बात को कम सुनेगा. आप इतने एक्सेलरेशन से मत बोल जाएं, सामने वाले को समझ में ना आए और बहुत लाउड आपकी आवाज हो. आपकी आवाज इतनी लाउड होनी चाहिए कि आप बच्चों को नीचे आप सबको नीचे. There is no word for that. It is the result of that. सबका चेक कर लेना. बेटा आप ही आ जाओ. वन मोर जल्दी जल्दी. वन मोर. वाओ.